and welcome to our discussion on research design. In last lecture when we met, we talked about exploratory designs on one end and descriptive designs on research design on other end. Exploratory was very flexible. It was almost not restricting us to anything, whether it be sampling design, operational design, statistical design. It left us open to explore. Whereas descriptive or rather diagnostic research design was very rigid. It was specifically telling us that this is what we need to look for. This is how we will be searching anything and everything. So it was very rigid, very specific in its nature. This is what we talked last time. Now we are advancing our discussion to hypothesis testing research design. So when we have a hypothesis, when I have an opinion, when I have an idea, I definitely need to go out and test whether this idea is correct, whether this idea is viable, whether this idea is feasible. That idea could be sales can be increased by pumping more money in advertising. You can increase sales by pumping more money in advertising. This could be an idea, this could be a hypothesis. This is my hypothesis. As a marketing manager, I have given this hypothesis that sales can be increased by putting in more money in advertising. Then there is another company whose manager says that sales can be increased by putting in more money on promotional schemes. So what is happening? There are two managers. One is saying that sales can be increased by putting in more money on advertising. The other one is saying you can increase sales by putting in more money on sales promotional activities. Then there is a third manager who is saying that sales can be increased by laying stress on quality of the product. Now there are three managers, they are giving their three hypotheses. I need to test which one is correct. So what we'll do is, we'll go out and gather data. We'll collect data. We'll see what happens if I put in more money on advertising. What happens if I put in more money on promotional schemes? What happens if I put in more effort on quality, ensuring quality in my product? What happens? Let me see, let me check. If putting in more money in advertising leads to more sales, then this hypothesis is correct, accepted. Otherwise, I'll reject that hypothesis. If putting more money in sales promotional schemes gets me more sales, I'll accept this hypothesis, else I'll reject it. And same is with the third one. If laying more stress on quality of product gets me more sales, I'll adapt that scheme, else I'll reject it. I'll accept that hypothesis that yes, good quality leads to more sales. I'll accept the hypothesis that yes, putting more money in advertising leads to more sales. So now we'll discuss hypothesis testing research designs. These will be known as experimental designs. So we had exploratory or fundamental designs that we talked of last time. Then we had descriptive or diagnostic research designs that we talked of last time. Now we've advanced our discussion onto experimental designs. Now when we talk of experimental designs, they can be broadly classified into formal designs and informal designs. Experimental designs. They can be broadly classified into formal and informal. Formal designs and informal designs. Right? So this is what we need to discuss now, experimental designs, informal designs and formal designs. Before we could talk about informal designs and formal designs, we need to talk about principles that should be followed in experimental designs. There are certain principles that we need to adhere to, that we need to ensure that they are being followed. What are those principles? Those principles are local control. So these three principles should be adhered to. We should ensure that while we are going in for experimental designs, we are preparing a design for some experiment to be conducted. These three principles are adhered to. What are those? Principle of replication, randomization and local control. Now what is this principle of replication? Replication is repeating
one set of results should be repeated n number of times, then only I can say that yes, this experiment is successful. Then only I can go ahead and accept an hypothesis. For example, we have someone ill with corona. These days we are talking about corona. Everybody is worried about corona infection. So there is a patient suffering from corona, infected from corona. I give him some medicine, and incidentally he recovers within 7 to 10 days and he is perfectly fine and he goes to his home. What happened? A person was infected by corona, I gave him a medication, he recovered in 7 to 10 days and he went home. Can I say that this medicine is very good for corona? Can I say that corona can be cured using this medicine? Can we say this? One individual was suffering from corona, I gave him a medicine, he got well, he left. Can I say that this medicine has cured him? Of course, he got cured, but can I say this that this medicine has cured him? Can I say this with a certainty that this medicine had cured him? Because we have seen that recovery rate for corona infected people is very high. In fact, fatality or mortality rate is very low. Recovery rate is very high. So I'm not sure that this person got cured because of this medicine. At least for one case I cannot say. What does principle of replication say? That if some other patient comes and I give him this medicine, the results should be replicated. That is, the next patient should also be cured within 7 to 10 days. Not only this, if a third person comes, I should give him that cure and he should also recover in 7 to 10 days. Whatever was the recovery process of first should be repeated in second, should be seen in third also. This is principle of replication. That whenever you are testing something, it does not mean that yes, I've tested it, I got the results, this is fine. Whenever you test something, you should repeat it. The test should be replicated. And if you are getting the same results each time, then I can say that yes, this hypothesis is accepted or this hypothesis is rejected. Yes, this medicine can cure this person or it cannot cure this person. Fine. So this is principle of replication. कि जब भी हम कोई एक टेस्ट किसी एक चीज पे करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही टेस्ट के बेसिस पे उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाए. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर स्टडीइंग, आप प्लेसमेंट का इंटरव्यू करते हैं, तो प्लेसमेंट का इंटरव्यू हो रहा है और उसमें एक ही टेस्ट दिया जाए, उसके अंदर अगर आप सब क्वालिफाई कर गए तो आपसे आगे बात की जाएगी, नहीं क्वालिफाई किया तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा. ऑफन इट कैन हैपन कि उन पर्टिकुलर 15 मिनट्स में, 30 मिनट्स में, 1 घंटे में, 2 घंटे में मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, मैं थोड़ा सा प्रेशर में आ गया और नतीजा क्या हुआ कि मेरा वो टेस्ट खराब हो गया एंड आई हैव बीन रिजेक्टेड. ऐसा नहीं. अगर हमारे को किसी को लेना है तो हम उसको कई बार वो टेस्ट देंगे, कई बार उसको कोई फॉर्मूला देंगे, कई बार उसको क्वेश्चंस देंगे, एंड इफ ही सक्सेसफुली कंप्लीट्स ऑल दोस टास्क्स, if he successfully makes a program algorithm for all of the tasks provided to him, then only I will say that yes, he is a good candidate. ठीक है ना. तो रेप्लिकेशन ये है कि एक ही बार में एक ही चीज को टेस्ट करके हम छोड़ेंगे नहीं, हम उसको बार बार ट्राई करें. और अगर सब जगह से सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, then I will say that yes, principle of replication is being that way. Then we have principle of randomization. प्रिंसिपल ऑफ रेंडमाइजेशन क्या कहता है कि एक सेट पैटर्न नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी अगर हमने एक सेट पैटर्न के अंदर या एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर कोई चीज अप्लाई करती है, तो हो सकता है कि जो रिजल्ट्स आए वो मिसलीडिंग आए. किस कारण से मिसलीडिंग आए? हो सकता है उनमें एक्सट्रेनियस जो फैक्टर्स हैं. अभी कुछ लेक्चर्स पहले हमने कुछ टर्म्स डिस्कस की थी, रिलेवेंट टर्म्स जो थी हमारे रिसर्च के लिए, उसमें एक्सट्रेनियस फैक्टर्स आए. What are extraneous factors? Extraneous factors are factors that are different from dependent and independent factors. हमारी रिसर्च जो होती है वो तो किस पे चलती है? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट की कॉजल रिलेशनशिप पे. बट एक्सट्रेनियस फैक्टर्स आर सच फैक्टर्स which have an effect on the research result. जैसे कि हमने देखा कि हम किसी जगह को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैं किसी को लंबा कूदना, ऊंचा कूदना, लॉन्ग जंप, हाई जंप सिखा रहा हूं. तो जब मैं किसी को ये ट्रेनिंग दे रहा हूं कि किस तरह से वो लंबी छलांग लगा सकता है, किस तरह से वो हाई जंप कर सकता है, तो एक तो जो मेरा ट्रीटमेंट है वो तो ये हो गया
कि मैं उसको एक्सरसाइज दिखा रहा हूं, और उसका आउटकम क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, दिस इज इंडिपेंडेंट कि मैं उसको ट्रेनिंग दे रहा हूं। वो ट्रेनिंग किसी भी तरह की हो सकती है, भागने की हो सकती है, अच्छा खाने की हो सकती है, अच्छा हेल्दी रहने की हो सकती है, कूदने की हो सकती है, किसी भी तरह की ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ, इट कुड बी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। तो अब जो मैं उसको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ ये तो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इस ट्रीटमेंट का रिजल्ट, कि वो कितना दूर कूद सकता है, वो कितना लंबा कूद सकता है, कितना ऊंचा कूद सकता है, हाई जंप कितना कर सकता है। तो ट्रेनिंग तो हो गई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए उसके रिजल्ट्स, कि अगर अच्छी ट्रेनिंग है तो अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी प्ले करेगा। वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या है कि उस कैंडिडेट की हाइट कैसी है। ये दोनों गेम्स ऐसे हैं जिसमें कि अगर उसकी हाइट अच्छी है तो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। टेबल टेनिस की मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं तो उसके अंदर क्या किया जाए, टेबल टेनिस की जो हाइट का रेशियो होता है और जो बॉल की हाइट होती है जिसके कारण वो बाउंस होगी, तो उसमें हमने देखा है कि जनरली ये जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं जिनमें हाइट थोड़ी सी कम होती है, दोज पीपल परफॉर्म बेटर इन टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के अंदर कभी भी हम 6 फुट वाले लोग नहीं देखते। बास्केटबॉल में सारे कौन होते हैं, 6, 6.5, 7 फुट वाले लोग होते हैं, क्योंकि वहां ऊंची बास्केट में हमारे को बॉल डालनी थी। यहाँ वो जो टेबल की हाइट होती है, टेबल टेनिस की हाइट, टेबल की हाइट, इट इज सच दैट कि अगर थोड़ा सा शॉर्ट आदमी है तो वो फ्लैट बॉल को हिट कर सकता है, उसकी बॉल इतनी ज्यादा बाउंसी नहीं जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब मैं यहाँ पे रेंडमाइजेशन को देखने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं किसी छोटे हाइट वाले को टीटी की प्रैक्टिस दे रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि वो एज अ रिजल्ट ऑफ माय प्रैक्टिस अच्छा खेल रहा है, हो सकता है कि उसकी हाइट कम होने के कारण ही वो अच्छा रिजल्ट दे पा रहा है। मैं जब ट्रेनिंग दे रहा हूं और उसको कह रहा हूं कि इस तरह से कूदेंगे और वो 6.5 फुट का आदमी है तो वो तो एक नॉर्मल स्टांस लेता है, नॉर्मल स्टेप लेता है, उसके अंदर ही वो तो लंबा कूद जाएगा। ये एक्सट्रीनियस फैक्टर्स हैं जो कि रिजल्ट पे इंपैक्ट डालेंगे ही डालेंगे, ठीक है ना। तो जो रेंडमाइजेशन है वो क्या कहता है कि आप रेंडमाइजेशन इंट्रोड्यूस कीजिए अपनी रिसर्च डिजाइन के अंदर, सो दैट इफेक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कैन बी मिनिमाइज्ड, कैन बी रिमूव्ड। कैसे कर सकते हैं हम ये प्रिंसिपल ऑफ रेंडमाइजेशन, इसके लिए देखें, सपोज ज्यादातर जो हमारी रिसर्च डिजाइन से वो क्या हुआ है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स के अंदर, एग्रीकल्चरल एरिया के अंदर उसका डेवलपमेंट हुआ है, ज्यादातर आइडियाज वहां से आए हुए। तो सपोज दिस इज एन एग्रीकल्चरल फील्ड दैट आई हैव, ठीक है, ये एक एग्रीकल्चरल फील्ड है हमारे पास। अब मैं देखना चाहता हूं कि इसके अंदर 3 अलग अलग तरह के क्रॉप्स की यील्ड कैसी है, ठीक है, 3 अलग अलग तरह के क्रॉप्स की यील्ड कैसी है। यहां पे आई हैव अ रिवर फ्लोइंग, देन यहां पे आई हैव अ रोड, यहां पे आई हैव इंडस्ट्रियल एरिया, एंड मे बी इधर की साइड आई हैव अ रेल। तो अब हमारे पास जो ये फील्ड रह गई है, ये बहुत बड़ी फील्ड है, इसके चारों तरफ हमारे पास क्या है, अलग अलग एनवायरमेंट्स है। कहीं पे हमारे पास रिवर है, कहीं पे रोड है, कहीं पर इंडस्ट्रियल एरिया है, कहीं पर रेल है। हमारे को 3 टाइप्स के सीड्स को टेस्ट करना है कि कौन से सीड की यील्ड अच्छी है। तो व्हाट डज प्रिंसिपल ऑफ रेंडमाइजेशन से, कि आप डेफिनेटली देखिए जो इधर का फील्ड है उस फील्ड के अंदर क्या होने लग जाएगा कि रिवर के कारण में भी मैं कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे फर्टिलिटी अच्छी रहेगी, हो सकता है यहाँ पे पानी ज्यादा मिल जाता हो तो यहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ, क्रॉप्स की ग्रोथ अच्छी हो जाए। ये जो वाला जो एरिया रहेगा ये बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया के साथ लगा हुआ है, मे बी इनका जो वेस्ट डिस्पोजल है, मे बी यहाँ से जो पोल्यूशन उठ रहा है, यहाँ के जो ट्रीज रहेंगे उनको थोड़ा सा इतनी अच्छी ग्रोथ ना मिले। देन रोड के किनारे और रेल के किनारे, मतलब इधर इधर जो हमारे को फील्ड्स मिलेंगे एकदम साइड साइड में, इधर और इधर, उनके अंदर भी हो सकता है हमारे को इफेक्ट मिले रोड और रेल का। तो आई कैन एक्सपेक्ट के ये एरियाज तो अच्छे रहेंगे क्योंकि यहाँ पे रिवर का इफेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे एटलीस्ट हम रोड और रेल दोनों से दूर हो गए और इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी दूर हो गए। ये वाले एरियाज ऐसे हो जाएंगे जहां पे मे बी हमारे को अच्छी यील्ड ना मिले। ये लॉजिक से हम बात कर रहे हैं, राइट नाउ आई हैव नॉट टेस्टेड एज इट। प्रिंसिपल ऑफ रेंडमाइजेशन क्या कहता है कि ये जो एक्सट्रेनियस फैक्टर्स हैं, अब हमारे को क्या चेक करना है कि हमारे क्रॉप की यील्ड कैसी है।
अब आप जब उस क्रॉप को लगाते हैं और आप उस क्रॉप को लगाते टाइम क्या कर देते हैं, यहां पर डाल देते हैं, आई मेक यूज ऑफ सम अदर कलर। जब आप उसको लगाते हैं तो इधर तो आप लगा देते हैं ए, फर्स्ट वेराइटी ऑफ क्रॉप, इधर आप लगा देते हैं सी, थर्ड वेराइटी ऑफ क्रॉप, और इधर आपने लगा दिया है बी। अब अगर आपने इस तरह से इन क्रॉप्स को लगा दिया है तो ऑब्वियसली जो क्रॉप ए है वो क्या है, बेटर कंडीशंस के अंदर लगा हुआ है। तो जो भी यील्ड आएगी, मैं ये गारंटी से नहीं कह सकता हूं कि वो यील्ड, ये जो हमारा सीड था टाइप ए का, उसके कारण आ रही है। हो सकता है उसको एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है, प्योर मिल रहा है, साफ मिल रहा है, इसलिए आ रही है। हमने क्या किया, बड़े सारे प्लॉट को, हमारा जो बड़ा सारा फील्ड था उसको 3 टुकड़ों में बांट दिया, क्योंकि 3 क्रॉप्स को टेस्ट करना था। ए को एनवायरनमेंट वैसे ही अच्छा मिल रहा है, रिच एनवायरनमेंट मिल रहा है, साफ एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो अच्छे से चल जाएगा। देन सी, इंडस्ट्रियल एरिया का पोल्यूशन है, रोड और रेल का पोल्यूशन है, तो सी की तो यील्ड बहुत कम आएगी। अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि सी जो सीड है हमारा, टाइप सी का जो सीड है, उसकी यील्ड कम है? हो सकता है उसका एनवायरनमेंट इतना ज्यादा पोल्यूटेड था कि वो यील्ड अच्छी नहीं दे पा रहा है। सेम इज विद बी। बी का मेजॉरिटी पोर्शन तो कहां जा रहा है, इस तरह से लग रहा है कि पोल्यूटेड एरियाज के अंदर है, थोड़ा सा उसका एरिया ऐसा है जो कि ठीक है फर्टाइल एरिया के अंदर हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब बी की भी रेटिंग सही नहीं आएगी, रीडिंग सही नहीं आएगी। तो व्हाट हैज हैपेंड, प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन क्या कहता है कि ये जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है क्या है, मैं तो चेक करना चाहता हूं कि जो मेरे 3 टाइप के सीड्स हैं उनकी यील्ड कैसी है, लेकिन कैन आई इग्नोर इफेक्ट ऑफ सॉइल, कैन आई इग्नोर इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, क्या मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं? मैं नहीं चेक करना चाहता पोल्यूशन का क्या इफेक्ट आता है क्रॉप की यील्ड के ऊपर, टाइप ए पे, टाइप बी पे, टाइप सी पे पोल्यूशन का क्या इफेक्ट है मैं अभी चेक नहीं कर रहा हूं। कर सकता हूं बट अभी मेरा ये आइडिया नहीं। अभी मेरा आइडिया क्या है कि इन तीनों में से कौन सा क्रॉप, कौन सा सीड बेस्ट है, कौन से सीड की यील्ड बेस्ट है, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। तो अब यहां पे ये क्या, ये रिजल्ट्स रिलायबल होंगे? नहीं होंगे। तो इसको अगर हम देखें तो प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन क्या कहता है कि हमारे को ये जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं, दैट इज ये हमारे को, हमने एक एरिया निकाला था जो कि थोड़ा हेल्दी लग रहा था, ये एरियाज लग रहे थे जो कि थोड़े से वीकर है। प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन कहता है कि आप इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स के जो इफेक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करो। कैसे कर सकता हूं मैं इनके इफेक्ट्स को मिनिमाइज? इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्ट्रिप्स लाइक ए, बी एंड सी, मैं क्या कर सकता हूं? तो प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन को फॉलो करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे को ये कंपोजिशन तो समझ में आ गया इस फील्ड का कि देयर इज अ हाई लाइक्लीहुड कि यहां का जो एरिया है वो थोड़ा सा ज्यादा फर्टाइल होगा, ज्यादा कंफर्टेबल कंडीशंस होगी फॉर द क्रॉप यील्ड, जबकि ये थोड़ी सी टेस्टिंग कंडीशंस होगी। व्हाट आई विल डू इज आई विल डिवाइड दिस कंप्लीट फील्ड क्या कर दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, मैंने इस पूरी फील्ड को क्या कर दिया, 30 स्मॉलर यूनिट्स के अंदर बांट दिया। अब अगर इन 30 स्मॉलर यूनिट्स को देखें तो इनमें से जो फर्टाइल एरिया है वो कितना है, हमने करीब करीब इस तरह का लिया था फर्टाइल एरिया, ये तो रिवर के पास है, ये वाला एरिया ऐसा है जो रोड से भी दूर है और रेल से भी दूर है, ये वाला एरिया ऐसा है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक है, या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा बेटर एरिया है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 5 and 5 10 and 2 12, ये कंप्लीट 30 स्मॉलर फील्ड्स में जो हमने बांट दिया, उनमें से जो हमारी 12 ऐसी फील्ड्स हैं, 5 10 12, जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़े फर्टाइल एरियाज हैं, और बाकी के ऐसे लग रहे हैं जो थोड़े से गड़बड़ एरिया है। अब मैं ये नहीं देख रहा हूं कि भाई ये मेरी सोच है, ये मेरा लॉजिक है, ये मेरा कंक्लूजन है कि दिस माइट बी फर्टाइल एंड दिस माइट नॉट बी अ गुड कंडीशन फॉर क्रॉप टू सर्वाइव। ये मेरी सोच है। हम जब एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं, हम जब हाइपोथेसिस टेस्ट करने जाते हैं, ये बायस नहीं डालते हैं उसके अंदर, रिसर्च के अंदर, वहां मैं अपनी सोच से उसको नहीं चलाता हूं, ठीक है ना। तो जब मैं अपनी सोच से नहीं चलाऊंगा, लेकिन इतना तो मैं सोच ही सकता हूं कि क्यों ना इस पूरी फील्ड को 30 में डिवाइड कर दिया जाए और फिर इसके अंदर रैंडमली सीड ए, बी एंड सी लगा दिया जाए, इतना तो मैं कर ही सकता हूं शायद। तो व्हाट आई डू इज रैंडमली लगाना है। 30 टोटल फील्ड्स है, 3 टाइप का क्रॉप है, तो लेट अस से मैं लगा देता हूं ए,
A 3 4 5 6 7 8 9 10 फील्ड्स के अंदर मैंने A लगा दिया, देन 10 फील्ड्स के अंदर B लगा देते हैं। लेट अस से मैंने लगा दिया B 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लेट अस से 10th इज हियर। तो अच्छा दूर दूर सब जगह मैंने, अब अगर आप देखें तो पूरे फील्ड के अंदर ए भी बिखरा हुआ है, जो कंप्लीट फील्ड था उसमें हर जगह पर ए है, ऐसा नहीं है कि ए एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो गया। पूरे में हमारे को ऑलमोस्ट ए बिखरा हुआ दिख रहा है, पूरे में मेरे को ऑलमोस्ट बी भी बिखरा हुआ दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वैसे ही मैंने अब क्या कर दिया, 10 फील्ड्स के अंदर सी लगा दिया। सो वी कैन सी कि पूरे फील्ड के अंदर अलग अलग जगहों पे सी भी नजर आ रहा है हमारे को। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन। हाँ, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी कि भाई दिस इज अ फर्टाइल एरिया बिकॉज इट इज क्लोज टू रिवर, these areas might be bit polluted क्योंकि ये रोड और रेल के नजदीक हैं, this will be very polluted because ये इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक है। अब मेरा लॉजिक मत लगाइए आप, स्टिल मेरा लॉजिक हटा दें तो भी ये सब रैंडम हो गया या नहीं हो गया। हर तरह का क्रॉप, हर तरह का सीड हर टाइप के एरिया में चला गया या नहीं। अगर आप इसको कहते हैं कि ये बहुत फर्टाइल एरिया है, ये जो ऊपर वाला है, तो इसके अंदर ए बी सी, तो करीब करीब सारे के सारे जो हमारे टाइप के क्रॉप्स हैं वो फर्टाइल एरिया में भी है, सारे के सारे टाइप के जो क्रॉप्स हैं वो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक भी हैं, ए बी सी सारे नजदीक आ रहे हैं। रोड के किनारे देखते हैं तो आई हैव डिफरेंट सेगमेंट्स, ए बी सी सारे आ रहे हैं। रेल के करीब देखते हैं तो वी हैव ए बी सी। व्हाट आई हैव डन इज, मैंने सब जगह सब कुछ ऐसे बिखेर दिया है कि अब हर एक टाइप का जो हमारा सीड है वो हर टाइप की जगह पर है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन। अब आप देखिए, क्या मैं जब यहां से रिजल्ट्स लूंगा कि भाई ए की कितनी यील्ड है, ए की कितनी यील्ड है, ए की कितनी यील्ड है, क्या उसमें बायस होगा कि वो सिर्फ रिवर से आ रही है? नहीं, क्योंकि कुछ ए ऐसा है जो रिवर के नजदीक है, कुछ ए ऐसा है जो रोड के नजदीक है, कुछ ए ऐसा है जो इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक है, कुछ ऐसा है जो रेल के नजदीक है। तो अब मेरे पास सब तरह का रिजल्ट आएगा, तो जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? एवरेज रिजल्ट आएगा। इसी तरह से बी भी सब जगह पर है, नियर रिवर, रोड, रेल, इंडस्ट्रियल एरिया, सब जगह बी भी है। सेम इज विद सी। इसका मतलब सबके जो मेरे यील्ड्स आएंगे, सबके स्कोर्स जो आएंगे वो क्या आएंगे? एवरेज्ड स्कोर्स आएंगे। एंड हेंस अब जो कंपैरिजन आ रहा है उसमें अगर मेरे को ये पता पड़ता है कि ए की यील्ड बहुत ज्यादा अच्छी है, बी की यील्ड अच्छी है और सी की यील्ड कम है, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि आपने सी को यहां लगा दिया था इसलिए ये कम आ रहा है, क्योंकि अब सी तो अच्छी जगहों पे भी लगा हुआ है, फर्टाइल लैंड्स में भी लगा हुआ है। अब अगर मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं कि सी की यील्ड सबसे कम है, तो इसका मतलब वाकई में जो टाइप सी का सीड है उसकी यील्ड कम है। दिस इज आइडिया ऑफ रैंडमाइजेशन। और यहीं पे हम प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन को भी देख लेते हैं कि मैंने जो डिजाइन अभी तैयार किया है, पहले वाला जो डिजाइन था उसमें रेप्लिकेशन नहीं हो रहा था। पहले वाला डिजाइन कैसा था मेरा? अभी जो इससे पहले अपन ने डिजाइन बनाया था उसमें क्या किया था मैंने? इधर ए लगा दिया था, बी लगा दिया था, सी लगा दिया। इसमें रैंडमाइजेशन नहीं हुआ क्योंकि ए टाइप का क्रॉप एक ही एक जगह आ गया, उसको रैंडम बिहेवियर कहां मिला, उसको रैंडम सॉइल कहां मिला, उसको रैंडम कंडीशंस कहां मिली, उसको रैंडम वाटर कहां मिला, सारा एक ही एक जगह होमोजेनियस टाइप का है, सी एक जैसी जगह, बी एक जैसी जगह। तो इसका मतलब उसमें रैंडमाइजेशन तो नहीं था पहले वाले डिजाइन में। इवन अगर रेप्लिकेशन की बात करें, रेप्लिकेशन मतलब एक एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट होना चाहिए। सारा ए कहां लगा दिया? एक ही एक जगह पे लगा दिया। तो जो रीडिंग्स आई वो सारी कहां की आई? एक ही क्लस्टर की, एक ही एरिया की आई। तो इसका मतलब ये वाली जो हमने डिजाइन बनाई थी, जो पहले थी, जो एक एमेचरिश डिजाइन थी, जो मेरे को पता भी नहीं था कि क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें ना तो रेप्लिकेशन था ना रैंडमाइजेशन था। लेकिन अब जो ये डिजाइन हमने बनाई है इसमें रेप्लिकेशन भी हो रहा है। जो अभी आपको कहा था कि अगर हमारे को कोई चीज टेस्ट करनी है तो बार बार उसको क्वेश्चंस दिए जाएं, कई सारे क्वेश्चंस दिए जाएं, और अगर वो सबको अच्छे से कर लेता है तब आई विल से कि हाँ इसको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। देन आई विल से कि दिस कैंडिडेट इज परफेक्ट फॉर माय प्रोग्रामिंग टास्क। वो जो दवाई है वो एक ही जने को दी और वो क्योर हो गया। मेरे को क्या पता कि वो बीमार भी था या नहीं था, मेरे को नहीं पता किस मैग्नीट्यूड का इलनेस उसमें था, एलिमेंट उसमें था, मेरे को नहीं पता कि इसकी रेजिस्टेंस कैसी है, इसकी इम्यूनिटी कैसी है,
तो आई एम नॉट श्योर कि ये मेरी दवाई से रिकवर हुआ या अपने आप रिकवर हुआ। लेकिन रेप्लिकेशन करते तो क्या होता, कई सारे जो पेशेंट्स आ रहे हैं उन सबको मैं दवाई देकर के टेस्ट, दैट इज रेप्लिकेशन, रिपीट करना एक्सपेरिमेंट को। यहां रिपीटेशन होगी, एक को अलग अलग जगह रिपीट किया जा रहा है। हाँ, इस पॉइंट पे एक डाउट आ सकता है कि सर हम इस फील्ड को अगर डिवाइड कर देते तो ये रेप्लिकेशन हो गया ना सर, 1 2 3 4 5 5 and 5 10, कि सर यहां भी आपने ए को 10 टाइम्स ही लगाया है, मैंने यहां ए को 10 टाइम्स लगा दिया, वहां आपने ए को 10 टाइम्स तो लगा दिया, लेकिन कंडीशंस तो चेंज ही नहीं हुई, सेम ही सेम कंडीशन के अंदर वो चले जा रहा है। तो यहां पे हम इसको रेप्लिकेशन नहीं कहेंगे, यहां हम उसको रेप्लिकेशन कह सकते हैं कि भाई एक टाइप की कंडीशंस के अंदर हमने टेस्ट किया, वो सक्सेसफुल हो गया, दूसरी टाइप की कंडीशंस में टेस्ट किया, सक्सेसफुल हो गया। जैसे पहले हुआ कि वो आया, उसको मैंने क्योर दिया और वो ठीक हो गया। अब हो सकता है उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो, अब मेरे पास जितने लोग आ रहे हैं वो सारे अच्छी इम्यूनिटी के ही आ रहे हैं, सारे जने मेरे पास जो आ रहे हैं वो 20 से 30 एज ग्रुप के ही आ रहे हैं, तो वो हेल्दी भी है, इम्यूनिटी भी अच्छी है, तो आई एम नॉट श्योर कि मेरी दवाई इन पे काम कर रही है, ये अपने आप ठीक हो रहे हैं। वहीं पे अगर मैं एक गांव वाले के ऊपर भी टेस्ट करता, एक बूढ़े के ऊपर भी टेस्ट करता, एक बच्चे के ऊपर भी टेस्ट करता, मेल पे भी टेस्ट करता, फीमेल पे भी टेस्ट करता, शहर वाले किसी पे भी टेस्ट करता, तो अलग अलग टाइप के लोगों पे जब टेस्ट करता तो उनकी इम्यूनिटीज भी अलग होती। कोई जना पोल्यूटेड एरिया में रह रहा होता, कोई जना एकदम साफ सुथरे गांव के हरे एरिया में रह रहा होता, अलग टाइप का उनका खान पान होता, तब भी अगर सब दवाई से सही हो रहे हैं, दैट इज रेप्लिकेशन। दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड रेप्लिकेशन। हो सकता है कि ये सब तो एक ही एज ग्रुप के लिए आए, ये तो सब एक एज ग्रुप के आ गए, कम एज ग्रुप वाले आ गए, ये सब लोग बड़ी एज ग्रुप वाले आ गए, फिर यहां तो रेप्लिकेशन इसको नहीं कहा जाएगा ना। तो रेप्लिकेशन तो क्या हो रहा है, एक एक्सपेरिमेंट को बहुत बार परफॉर्म किया जाए, तो दैट इज रेप्लिकेशन। रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन से क्या हो जाता है भाई, रेप्लिकेशन तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि इस तरह को आपने कह दिया कि 10 फील्ड्स कर दी, लेकिन रैंडमाइजेशन ने क्या कर दिया, these both principles together have ensured कि हमारा जो कंप्लीट स्कैटर है, ए भी हर तरह के एनवायरनमेंट में है, बी भी हर तरह के एनवायरनमेंट में है, सी भी। अब जो रीडिंग्स आ रही हैं उनको आई कैन से कि यस दीज आर रिलायबल। तो प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन, किसी चीज को रिपीट करना, प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन, रैंडमली अप्लाई करना, रैंडमली किस लिए अप्लाई करना, टू नलिफाई या मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। इफेक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या था, इस केस में मेरे को एक्सट्रेनियस वेरिएबल समझ में आ गया था कि क्रॉप यील्ड के केस में फर्टिलिटी कैन बी, फर्टिलिटी ऑफ लैंड कैन बी एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जिसका इफेक्ट आएगा ही आएगा, बट राइट नाउ आई एम नॉट स्टडीइंग इट। पोल्यूशन का इफेक्ट आएगा ही आएगा ऑन ग्रोथ ऑफ प्लांट, बट राइट नाउ आई एम नॉट स्टडीइंग इट। तो यहां पे हमने एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को क्या किया, नलिफाई करने की कोशिश की, इग्नोर, इस तरह से डिजाइन तैयार किया कि उनका इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाए या रिमूव हो जाए। फाइन, तो ये दो है। फिर तीसरा हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल? प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल ये कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का इफेक्ट आएगा ही आएगा, तो आप क्या कीजिए कि अपना जो फील्ड है, हाँ हम इसको बार बार फील्ड कह रहे हैं, आप अगर ये एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स के ऊपर कर रहे हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को उस तरह से बांट लीजिए, आप अगर अपना एक्सपेरिमेंट किसी प्रोडक्ट पे कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट कैटेगरीज को इस तरह से बांट लीजिए। हम एक बार इसको फील्ड की तरह से समझने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल क्या कहता है कि अगर if the experiment cannot be freed from effect of extraneous variable, तो बेटर है कि आप उस एक्सट्रेनियस वेरिएबल को इतना वेरी करो, आप उस एक्सट्रेनियस वेरिएबल के इफेक्ट को इतना समझो कि फिर हम उस एक्सट्रेनियस वेरिएबल के इफेक्ट को हटा सकें। आइडिया इज कि अगर ऐसा हो रहा है कि भाई इस एक्सट्रेनियस वेरिएबल का इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, मैं इग्नोर नहीं कर सकता, मैं रिमूव नहीं कर सकता, अगर रिमूव नहीं कर सकते तो फिर उस इफेक्ट को आने दो, और उस इफेक्ट को इस तरह से आने दो कि मैं उसको स्टडी कर सकूं कि इसका कितना इफेक्ट आ रहा है। जब मैं उसको स्टडी कर सकूंगा तो फिर मैं जो आपको फाइनल डिसीजन दूंगा उसके अंदर मैं उसको रिमूव भी कर सकता हूं। ठीक है ना, दिस इज द आइडिया बिहाइंड प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल, कि अगर एक्सट्रेनियस वेरिएबल आने वाला है तो फिर आप उसको आने दो और आप उसको स्टडी करो, सो दैट आई कैन रिमूव द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। फाइन, ऐसा हमारे डिजाइन के अंदर होना चाहिए। जैसे कि यहां पे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का इफेक्ट आएगा ही आएगा, फर्टिलिटी है, पोल्यूशन है, इन दो का हम
इफेक्ट कैसे रोक सकते हैं? तो मैंने क्या किया, ऑन पर्पस प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल। अब हम देखें इस डिजाइन के अंदर नोइंगली अननोइंगली हमने प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल भी लगा दिया। कैसे लगा दिया? व्हाट डज इट से? कि आप अपनी डिजाइन इस तरह की बनाओ कि अगर एक्सटेनियस वेरिएबल का इफेक्ट आ रहा है तो आ जाए और फिर मैं उसको मेजर करके हटा दूं। यहां पर आप देख लीजिए, मेरे को पता था एक्सटेनियस वेरिएबल का इफेक्ट आएगा और मैंने अपना डिजाइन किस तरह का बना लिया, मुझे पता था कि ये वाला वो एरिया रहने वाला है जहां पे पोल्यूशन रहेगा। दो ही तो एक्सटेनियस वेरिएबल्स को अभी मैंने कंसीडर किया था। इस तरह से 10 एक्सटेनियस वेरिएबल्स हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। मेरे हिसाब से व्हेन आई वाज टेस्टिंग फर्टिलिटी ऑफ yield of a seed, yield of seeds of type A, B and C, तो जब मैं इन तीन को स्टडी कर रहा था तो मेरी समझ में यह था कि लैंड की जो फर्टिलिटी है उसका इफेक्ट भी यील्ड पे आएगा, जो फर्टिलाइजर्स है उनका आएगा, जो खाद है उसका आएगा। मैंने अभी उनको इग्नोर कर रखा है। मैं मान रहा हूं कि मैं सभी जगह सेम फर्टिलाइजर सेम खाद दे सकता हूं, तो लैंड का तो फर्क डेफिनेटली आएगा, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल का, तो पोल्यूशन का इफेक्ट भी डेफिनेटली आएगा। तो मैंने दो ही एक्सटेनियस वेरिएबल्स लिए। तो अब अगर मैं देखूं तो मैंने अपनी फील्ड को किस तरह से समझ रखा था कि भाई मेरी फील्ड दो में बटी हुई है। तो ये एक सेक्शन हो गया जो कि फर्टाइल एरिया है, ये एक सेक्शन हो गया जो कि पोल्यूशन के आसपास का एरिया है। फिर मैंने क्या किया, ठीक है ये पोल्यूशन का एरिया है, लाओ इस पोल्यूशन के एरिया में हम सारे के सारे टाइप के टेस्ट करेंगे। कौन कौन से टेस्ट? सीड ए को, सीड बी को, सीड सी को। जो फर्टाइल है उसके अंदर हम सारों को टेस्ट करेंगे। तो हुआ ये कि जब हम रेंडमाइजेशन इंप्लीमेंट कर रहे थे, एक्चुअली हमने लोकल कंट्रोल पहले ही इंप्लीमेंट कर दिया था। जो हमारा इनिशियल डिस्कशन था कि भाई ये वाला एरिया थोड़ा सा गड़बड़ एरिया रहेगा, तो वहां मैं प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल की बात ऑलरेडी कर चुका था कि मैंने फील्ड को दो के अंदर बांट दिया था। दूसरा एग्जांपल हमने जो लिया था कि लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। अब इसमें एक्सटेनियस वेरिएबल क्या रह सकता है? हाइट। मैं 2, 3, 6 फुट वाले 7 फुट के लोग लाता हूं और उनको कहता हूं कि लो भाई कूदो 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 कूदो, उनको 10 दिन 15 दिन कहता हूं कूदते जाओ। 2-1 टिप्स भी बताता हूं उनको और फिर उनको मेजर करता हूं कि ठीक है भाई ये तो 3 मीटर कूद रहे हैं और 5 मीटर कूद रहे हैं, वेरी गुड। अब मैं क्या बाहर जाके कहूंगा कि मेरी ट्रेनिंग का नतीजा है कि ये आदमी 3.5 मीटर कूद रहा है। अब आई एम नॉट श्योर कि क्या ये मेरी ट्रेनिंग से कूद रहा है या ये इतना हाइट है कि इसकी हाइट का रेशियो अगर मैं लूं तो ये थोड़ा सा चलता हुआ अगर कूदेगा तो इतना तो ये वैसे ही नॉर्मली कूद जाएगा। वहीं पे कोई दूसरा कम हाइट का कैंडिडेट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो कूदता है तो वो देखता है कि मैं तो 3 फुट ही कूद पा रहा हूं, जबकि ये तो 8-9 फुट कूद रहे हैं। अब यहां पे हो ये रहा है कि मैं तो कह रहा हूं कि देखो मेरी ट्रेनिंग से 8 फुट 9 फुट कूद रहा है, जबकि ये आदमी खुद क्या है 6.5 फुट का है, वो आदमी खुद क्या है 5.25 फुट का है, बच्चा है अभी वो कोई जना 5 फुट का है। तो वो कह रहा है कि मैं तो 3 ही फुट कूद पा रहा हूं, मेरे को तो ट्रेनिंग की जरूरत है। अब यहां ये गड़बड़ क्या हो रही है कि हमने एक एक्सटेनियस वेरिएबल को इग्नोर कर दिया, हाइट को इग्नोर कर दिया। वो बच्चा क्या सोच रहा है कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आऊंगा तो मेरे को लंबा कूदना सिखा देंगे, ये एक अच्छा कोच है, ये मेरे को 10 फुट कूदना सिखा देगा, जबकि वो इग्नोर कर रहा है कि मेरी हाइट इन लोगों से 1.5 फुट कम है। ऑब्वियसली जो मेरी छलांग रहेगी वो भी इनसे कम रहेगी। This height becomes extraneous factor. टेबल टेनिस की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो कम हाइट वाले का वैसे भी जो स्विंग आएगा, जो फ्लो आएगा, उसका शॉट इतना फ्लैट रहेगा। हम देखते हैं कि जो नए लोग टीटी खेल रहे होते हैं तो उनकी बॉल इस तरह से ट्रेवल करती है कि जब इधर से शॉट लगेगा तो वो ऐसे जाएगा, जबकि जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उनके शॉट जाते हैं ऑलमोस्ट एकदम फ्लैट। क्रिकेट के अंदर आप देख लीजिए कितने अट्रैक्टिव लगते हैं वो जो फ्लैट सिक्सेस होते हैं, क्योंकि उनमें ताकत होती है, वो ज्यादा ऊंचे उछलते ही नहीं है, वो एकदम लो हाइट के ऊपर चले जाते हैं। तो टीटी के अंदर भी सेम प्रिंसिपल लग रहा है कि जो लो हाइट का है उसका एक एंगल ऐसा बनता है कि वो फ्लैट शॉट्स खेल लेता है। अब मैं कहता हूं कि देखो ये स्टूडेंट तो मेरा बहुत अच्छा खेल रहा है और मेरे पास सारे स्टूडेंट्स कौन है, बच्चे ही बच्चे हैं, तो मैं कहता हूं देखो ये कितना अच्छा टीटी खेल रहे हैं। ये दूसरे लोग हैं जो 6 फुट 7 फुट के हैं, जो बास्केटबॉल अच्छा खेल लेते हैं, टीटी नहीं खेल पा रहे। अब यहां पे आई एम इग्नोरिंग द एक्सट्रेनियस फैक्टर, वो एक्सट्रेनियस फैक्टर भी रोल प्ले करेगा। तो ऐसे केस में अगर हम प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल को मेरी डिजाइन में डालना चाहें तो मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने अभी आपको कह दिया था ना कि मेरे 3 स्पोर्ट्स पर्सन है ट्रेंड हैं जो 8 फुट और 10 फुट कूद रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं करूंगा 3 ऐसे भी लूंगा, फिर मैं क्या करूंगा 3 छोटी हाइट के भी लूंगा, और फिर मैं देखता हूं कि इनका हाइट के अंदर
इनका जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं उसके अंदर कुछ चेंज आ रहा है क्या। अगर उन दोनों के अंदर चेंज आ रहा है, लंबे वालों में भी और छोटे वालों में भी, तब आई कैन से मेरी ट्रेनिंग इफेक्टिव है। तो ये हुआ हमारा प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल कि जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है आप उसको समझ लो और फिर आप उसको वेरी करो, जिससे कि आप उसका इफेक्ट समझ सको। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल। यहां हम समझ गए थे कि ये दो एक्सट्रेनियस फैक्टर्स हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं, तो मैंने उनको समझ लिया, फिर मैंने उनको वेरी कराया कि लाओ ये आ गए अपने समझ में, अब कहीं पे ए लगाएंगे, कहीं पे बी लगाएंगे, कहीं पे सी लगाएंगे। आई एम इंटेंशनली मेकिंग देम वेरी कि भाई ए यहां पे भी आएगा, ये इधर भी आएगा, ये बिल्कुल ही नजदीक इंडस्ट्रियल एरिया के तो शायद पोल्यूशन लेवल ज्यादा होगा। तो आई एम मेकिंग द वेरिएशंस आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द एक्सट्रेनियस वेरिएबल। अब मैं उसको हटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। जब हमने एक्सट्रेनियस वेरिएबल पढ़े थे तो क्या देखा था कि वी हैव डिपेंडेंट वेरिएबल्स, वी हैव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जिनको हम स्टडी कर रहे हैं। हम क्या स्टडी करते हैं? इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये स्टडी करते हैं। और एक्सट्रेनियस वेरिएबल कौन है? जिसका इफेक्ट रिसर्च पे आता ही आता है, लेकिन मैं उसको स्टडी नहीं कर रहा। नाउ दिस प्रिंसिपल सेज कि आप उसको लाओ, रिसर्च के अंदर लाओ, उसको स्टडी करो, जिससे कि फिर मैं उसको हटा सकूं। फाइन, सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल। अब ये तीनों आई अज्यूम के ये यहां से समझ में आए होंगे, और अगर नहीं भी समझ में आए हैं तो जब हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स को देखेंगे तब हम उसके बारे में बात करके देखेंगे कि हाँ इनके अंदर ये जो कंट्रोल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। जिस डिजाइन के अंदर ये सारे प्रिंसिपल्स लग जाएंगे वो डिजाइन क्या हो जाएगी? एक अच्छी डिजाइन हो जाएगी कि उसके अंदर रेप्लिकेशन भी होगा, रैंडमाइजेशन भी होगा, लोकल कंट्रोल भी होगा। अगर ये सारे प्रिंसिपल्स किसी भी डिजाइन के अंदर जो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे उनमें अगर लग रहे हैं, then it is a good research design, then it is a good experimental research design, may it be a formal one or an informal one। ठीक है, तो ये कुछ हमारे प्रिंसिपल्स रहेंगे। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट we'll advance to discussion on informal and formal designs. So this was it for our today's discussion on principles of research design. These were principles of research design। क्या मतलब है प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च डिजाइन का? कि जब आप एक डिजाइन तैयार करते हो तो उसमें इन सब बातों का ध्यान रखोगे, उसमें रेप्लिकेशन हो। एक जने पे दवाई टेस्ट करके मत कह दो कि दवाई अच्छी है, बहुत सारों पे टेस्ट करो। रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन, अलग अलग तरह के लोगों पे टेस्ट करो, अलग एज ग्रुप्स पे करो, अलग ज्योग्राफिकल स्प्रेड पे टेस्ट करो, अलग सिटीज पे करो, अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस पे करो, तब कहो कि दवाई सही है। रैंडमाइजेशन। देन प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल कि अगर कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल है जो कि इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, तो फिर गो अहेड एंड वेरी इट। आप उसको वेरी करके देखो, आप उसको स्टडी करके देखो, जिससे हम उसका इफेक्ट निकाल सकें। जैसे कि कोरोना के केस में क्या कहते हैं कि अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है किसी की, तो इट इज मोर लाइकली कि कोरोना उसको अफेक्ट करे। तो जब आपको पता पड़ गया है कि प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन से कोरोना की सीरियसनेस या इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है, तो फिर जब अब मैं टेस्ट करूंगा तो मैं कुछ ऐसे लोगों को भी लेने का ध्यान रखूंगा और उन पर अलग से ध्यान रखूंगा जिनकी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है। ऐसे लोगों को भी लूंगा जिनकी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। तो अब ये मेरे को समझ में तो आ गया इनका डिफरेंस क्या है। अब ये सभी लोग क्या है? इन सभी की एग्जिस्टिंग हिस्ट्री, और सबकी अलग अलग एग्जिस्टिंग हिस्ट्री हो सकती है। किसी का हाई बीपी होगा, किसी का लो बीपी होगा, किसी की ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, किसी के हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अब वो एक ग्रुप मिल गया मेरे को, ठीक है, इनकी प्री एग्जिस्टिंग हार्ट इश्यूज हैं, इनके शुगर के इश्यूज हैं, इनके बीपी के इश्यूज हैं, उनके ऊपर टेस्ट करते हैं, उनके ऊपर टेस्ट करते हैं, उनके ऊपर टेस्ट करते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं बाहर जाके रेंडमली 10 जनों पे टेस्ट कर दिया। अब जब मेरे को समझ में आ गया है कि इस एक्सट्रेनियस का तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, यस रेंडम होना चाहिए, जाओ और 10 जनों से पूछ डालो, कोई भी रैंडम से। लेकिन अब जब समझ में आ गया है कि इसका इफेक्ट आता है, तो फिर हार्ट वाले 10 अलग से लेंगे हम, बीपी वाले, शुगर वाले, लंग्स वाले, लीवर वाले, हेल्दी वाले, कम एज के, ज्यादा एज के, सब तरह के लोग लेंगे और उन पे करेंगे। दैट विल बी प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल, क्योंकि अब मैं उस एक्सट्रेनियस को समझ करके हटा सकता हूं। फाइन, सो दिस वाज आवर डिस्कशन फॉर टुडे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। Until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye bye.